Hello dear students, this is Vivek Tiwari. Till now we have studied basics of the matrices like addition, subtraction, multiplication, transpose of the matrix. Okay, those are topic which is basics of the matrices and which is there in the syllabus of 11th science and 12th commerce. Okay, now from now onwards, whatever topics we are going to see, that topics are for 12th science and for 12th commerce, and these topics are important topics because you will face questions in your board exam on the basis of inverse of the matrix and linear equations, right? Now there is two method to find inverse of the matrix, that is adjoint method and elementary transformation method. Okay, and to find the solution of linear equations we have again two method, that is reduction method and inversion method. Okay, now in this video we will discuss on adjoint method. So let us begin with the lecture. So to find the inverse of the matrix we will use adjoint method. Okay, so you will get one matrix in your question and you're supposed to find the inverse of that matrix, right? So adjoint method में एक formula है, वो formula will help to find the inverse of the matrix. Okay, so what is the formula of inverse? For example 5 है, 5 का inverse क्या होता है? 1/5 होता है, right? So a का inverse क्या होगा? 1/a होगा. So that 1/a can be written as a inverse. Okay, so हम लोग मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल रहे हैं, उसका उल्टा कर रहे हैं. सो विल सी हाउ टू फाइंड. ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है? 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए. So what is the formula of A inverse? That is 1/a into adjoint of A. So here you should know the concept of determinant. Okay, because आपको determinant निकालने आना चाहिए, first thing. Second thing, आपको adjoint निकालने आना चाहिए, right? adjoint के लिए हम लोग कौन सा concept यूज़ करेंगे? minors and co-factors का. So जो minor and co-factor का concept था, that you have studied in your 11th standard. Okay, determinant करके chapter था, in that chapter you have studied how to find minor and cofactor of the matrix. So without wasting time, let us start with the solution. Okay, fine. So this is the given matrix which is A. Okay, so first we will write this matrix in the form of determinant. How will you write? Just change the sign of the matrix. Okay, जो square bracket था उसको change करके क्या कर लो? नॉर्मल डिटरमिनेंट के साइन में लिख लो. नाउ ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है. डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 3 2s are 6 माइनस 4 इंटू -2 विल बी -8, राइट? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. सो 6 + 8 विल बी 14. सो हियर यू गॉट डिटरमिनेंट ऑफ A as 14. Right, now here one point is need to be remember that determinant of A should not be equal to 0. Okay, अगर इन्वर्स निकालना है सो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होनी नहीं चाहिए. अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है तो क्या हो जाएगा? 1/0 हो जाएगा. 1/0 क्या होता है? अनडिफाइंड होता है, राइट? सो आप हमेशा याद रखना, अगर ए इन्वर्स निकालना है ऑन दैट टाइम द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0. अगर 0 नहीं रहेगा तभी ए इन्वर्स एग्जिस्ट होने वाला है. सो कभी कभी क्वेश्चन में, बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसका ए इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता है. बच्चे सॉल्व करना स्टार्ट कर देते बट चेक करते नहीं हैं. चेक कैसे करेंगे? पहले हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे. अगर उसका डिटरमिनेंट 0 आया मतलब इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, तो आपको क्या लिखना? सिंपली ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट. सम वहीं पे ख़त्म हो जाएगा. बट अगर डिटरमिनेंट क्या आता है? नॉट इक्वल टू 0 आता है, ऑन दैट टाइम ए इन्वर्स इज पॉसिबल और आपको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा. सो ए इन्वर्स कब एग्जिस्ट होगा? जब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 होगा,
तभी ए इनवर्स एग्जिस्ट होने वाला है. सो हियर इन दिस केस द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 14 मीन्स व्हाट? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट. मतलब ए इनवर्स निकालना पॉसिबल है. सो आपको हमेशा पहले डिटरमिनेंट निकालना है और चेक करना है ज़ीरो है कि नॉन ज़ीरो है. नॉन ज़ीरो मतलब ए इनवर्स पॉसिबल है तो कैलकुलेशन करने का. अगर इन केस वो क्या आ गया, वहीं पे ज़ीरो आ गया, मीन्स ए इनवर्स पॉसिबल नहीं है. सो आपको क्या करना है, कैलकुलेशन वहीं पे स्टॉप कर देना है. राइट नाउ आपको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, माइनस एंड को फैक्टर्स निकालना पड़ेगा. बिकॉज फॉर्मूला क्या था ए इनवर्स का, दैट इज 1 ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. राइट, यही फॉर्मूला था 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. सो हमने क्या किया, 1 निकाल लिया. राइट, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए हमने निकाल लिया. अब हमको क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है. एडजॉइंट निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, माइनस एंड को फैक्टर कैसे निकालते हैं वो पता होना चाहिए. राइट, सो here I will write to find adjoint of A. Okay, so ये जो स्टेप्स है, ये स्टेप्स किसके लिए है, एडजॉइंट निकालने के लिए. कोई मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट निकालना है, ऑन दैट टाइम वी विल यूज दिस स्टेप. ओके, एडजॉइंट कैसा निकालेंगे, सी पहले माइनर निकालेंगे. ओके, कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है. कितना माइनर मिलेगा, 4 माइनर मिलेगा. M11 फॉर फर्स्ट पोजिशन, M12 for second position, M13 for third position, third तो है नहीं इधर, M21 that is third position, M22 that is fourth position. राइट, माइनर के थ्रू क्या मिलेगा, को फैक्टर मिलेगा. सो माइनस को हम लोग शो करते हैं M से, को फैक्टर को शो करते हैं A से. सो दैट इज A11, A12, A21, A22. दिस इज को फैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स, दिस इज माइनर ऑफ द मैट्रिक्स. राइट, नाउ को फैक्टर माइनर के थ्रू मिलेगा. सो माइनर कैसा मिलेगा, विल सी. M11 मतलब कौन सा पोजीशन, दिस इज फर्स्ट वाला पोजीशन. राइट, दिस इज फर्स्ट वाला, ये वाला. सो ये पोजीशन कहाँ पे आता है, फर्स्ट रो में आता है, और कहाँ पे आता है, फर्स्ट कॉलम में आता है. उसको छुपा लेने का. कितना बचा, 3 बचा, मीन्स माइनर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा. सो दिस इज 3. नाउ अभी क्या निकालना है हम लोग को, M12 निकालना है. 12 मतलब ये वाला पोजीशन. सो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को छुपा लेंगे. क्या बचा, 4 बचा. सो M12 विल बी 4. M21 मतलब कौन सा पोजीशन, ये वाला पोजीशन. ये कहाँ पे आता है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. सो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को छुपा लेंगे. कितना बचा, -2. राइट, M22 मतलब ये वाला पोजीशन, ये कहाँ पे आता है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में आता है. हम लोग उसको छुपा लेंगे. क्या बचा, 2. सो सिंपली तुमको क्या करना है, जिस पोजीशन का माइनर चाहिए वो रो को, वो कॉलम को एलिमिनेट कर दो. जो बचा वो क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा. ना को फैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला है, हियर आई विल टेल वन शॉर्टकट्स. ओके, वो शॉर्टकट्स यूज़ करना है ताकि आपका टाइम क्या हो सके, एग्ज़ाम में सेव हो सके. वो शॉर्टकट्स के लिए आपके मार्क्स कट होने वाले नहीं है. सो डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, ना हमेशा याद रखना, जो माइनर आया सेम वैल्यू किसका होने वाला है, को फैक्टर का होने वाला है. सो जो माइनर आया मैंने क्या किया, सेम वैल्यूज को कॉपी कर लिया, कुछ चेंजेस किया नहीं किया. राइट, सो व्हाट इज़ द डिफरेंस इन माइनर एंड को फैक्टर. हमेशा याद रखना, को फैक्टर के लिए साइन चेंज होता है. क्या चेंज होता है, साइन चेंज होता है. ओके, साइन किसका चेंज होगा, ऑड पोजीशन का चेंज होगा. तो हम क्या करेंगे, पोजीशन का एडिशन करेंगे. अगर पोजीशन का एडिशन करने पे हमको क्या मिला, इवन नंबर मिला. ओके, ऑन दैट टाइम साइन विल रिमेन सेम. अगर पोजीशन का एडिशन करने पे साइन क्या मिला, ऑड नंबर मिला, सो केस में क्या होगा, साइन चेंज होगा. ओके, फॉर एग्जांपल पोजीशन यहाँ पे कितना है, 1 1 है. सो 1 + 1 विल बी 2. 2 इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा. 1 + 2 विल बी 3. ऑड है, साइन चेंज हो जाएगा. प्लस था तो माइनस हो गया. 2 + 1 3 ऑड है, साइन चेंज हो जाएगा. माइनस था तो प्लस हो गया. 2 विल बी 4 इवन है तो साइन विल रिमेन सेम. सो माइनस निकालना, माइनस के हेल्प से को फैक्टर निकालना. राइट,
को फैक्टर कैसे मिला, जो माइनस की वैल्यू रहेगी सेम वैल्यू को फैक्टर की हो जाएगी। को फैक्टर का बस साइन चेंज होने वाला है, राइट। साइन कैसे पता चलेगा, हम लोग क्या करेंगे, जो उनका पोजीशन है पोजीशन का एडिशन करेंगे। अगर पोजीशन का एडिशन इवन है तो साइन विल रिमेन सेम, साइन में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। बट अगर पोजीशन का एडिशन करके ऑड नंबर मिलता है ऑन दैट टाइम साइन विल चेंज। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। सो यहाँ से हम लोग को नया मैट्रिक्स मिलेगा, किसको अरेंज करके, को फैक्टर को अरेंज करके। दैट इज 3 -4 +2 एंड 2। ये क्या मिला, मैट्रिक्स ए मिला। दैट इज को फैक्टर ऑफ ए, को फैक्टर ऑफ ए। ओके, को फैक्टर ऑफ ए मीन्स को फैक्टर मैट्रिक्स मिला। बट हमको क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए, राइट। सो एडजॉइंट का मतलब क्या होता है, जो को फैक्टर आया उसका ट्रांसपोज कर दो। को फैक्टर का ट्रांसपोज करेंगे तो जो मैट्रिक्स मिलेगा उसको एडजॉइंट बोलते हैं। ट्रांसपोज करो, 3 - 4 है, सो रो को चेंज कर दो कॉलम में, रो को चेंज कर दो कॉलम में। सो हमने क्या किया, को फैक्टर वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया तो वहाँ से क्या मिल गया, एडजॉइंट मिल गया, राइट। एडजॉइंट मिल गया तो ए इनवर्स निकाल सकते हैं, कैसे, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ओवर हियर, डिटर्मिनेंट इज 14, सो राइट 1/14। एडजॉइंट कितना मिला, 3 - 4 2 2 दिस वन। सो उसको मैंने रिप्लेस कर दिया। दिस इज अवर आंसर, दैट्स इट, इतना ही करना था। सो ए इनवर्स निकालने के लिए फर्स्ट क्या करेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे और चेक करेंगे डिटरमिनेंट 0 है कि नहीं। अगर डिटरमिनेंट 0 है तो ए इनवर्स पॉसिबल नहीं है, अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं है सो ए इनवर्स पॉसिबल है। सो ए इनवर्स निकालने के लिए डिटरमिनेंट चाहिए था, वो हमने निकाल लिया। नाउ वी विल फाइंड माइनस ऑफ द मैट्रिक्स। माइनर कैसा निकालेंगे, जिस पोजीशन का माइनर निकालना रहेगा वो रो को, वो कॉलम को हम लोग रिमूव कर देंगे। ओके, सो जो बाकी बचेगा वो क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। ना माइनर के थ्रू को फैक्टर निकालेंगे, राइट। जो माइनर का वैल्यू रहेगा सेम वैल्यू को फैक्टर का होगा। डिफरेंस किसका आएगा, साइन का आएगा। इवन पोजीशन रहेगा तो साइन चेंज नहीं होगा, ऑड पोजीशन रहेगा तो साइन चेंज हो जाएगा। को फैक्टर की हेल्प से एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, दैट इज को फैक्टर मैट्रिक्स। ओके, वो जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो वहाँ से क्या मिलेगा, एडजॉइंट मिलेगा। अब एडजॉइंट मिल गया तो अब दोनों वैल्यूज़ मेरे पास है तो फॉर्मूले में रिप्लेस कर दो, वहाँ से क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स मिल जाएगा। सो एग्जाम में ये क्वेश्चन 3 to 4 मार्क के लिए आता है। नाउ व्हाट हैपन, सम टाइम वो इनवर्स को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ एडजॉइंट पूछते हैं कि फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। ऑन दैट टाइम डिटरमिनेंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, सीधा माइनर निकालो, सीधा को फैक्टर निकालो और उसका ट्रांसपोज कर दो, वहाँ से क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट मिल जाएगा। सो जब सिर्फ और सिर्फ एडजॉइंट पूछेंगे उस टाइम पे सीधा माइनर निकालना है, को फैक्टर निकालना है, को फैक्टर मैट्रिक्स निकालना है और उसका ट्रांसपोज करना है, राइट। डिटरमिनेंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, इनवर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो जब एडजॉइंट पूछेंगे तो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ इतना सोल्यूशन रहने वाला है। ओके, सो ये हम लोगों ने जो देखा इसमें मैट्रिक्स का जो ऑर्डर था वो ऑर्डर कितना था, 2/2 था। और एक सम और हम लोग देखेंगे जिसमें एडजॉइंट मेथड से क्या करेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे, बट वो मैट्रिक्स जो रहेगा उसका ऑर्डर कितना है, 3/3 का है। ओके, ए इनवर्स निकालने का जो फर्स्ट स्टेप है वो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं ताकि हम लोग चेक कर सके ए इनवर्स पॉसिबल है कि नहीं, राइट। सो यहाँ पे हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। सो निकालते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, फर्स्ट एलिमेंट कंसिडर करते हैं। सो टेक फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 2। देन क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर देते हैं। क्या बचा, ये 4 एलिमेंट बचा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2 2 4 -1 विल बी +1, राइट। फर्स्ट एलिमेंट लिया। नाउ टेक नेक्स्ट एलिमेंट, साइन क्या आएगा, माइनस आएगा बिकॉज फर्स्ट प्लस था, सेकंड क्या होता है, माइनस। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, -1 है, सो दिस माइनस बिकम प्लस, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, राइट। देन ये कहाँ पे है, सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो में है, सो लीव दैट। क्या बचा, ये 4 एलिमेंट बचा, दैट इज -1 1 2। सो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, राइट। सो -1 × 2 विल बी -2, -1 × -1 -1, सो माइनस माइनस बिकम प्लस,
नाउ टेक थर्ड एलिमेंट 1 है, सो राइट 1, राइट 1 कहाँ पे है, थर्ड कॉलम में है, फर्स्ट रो में है, सो लीव फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये 4 एलिमेंट बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 विल बी +1 माइनस 2 1 जा 2, so this become 2, 4 minus 1 will be 3 plus 1. Okay, now this is +1, so write +1 as it is, -2 plus 1 will be -1, right, 1 1 minus 2 will be -1, साइन किसका, बिगर नंबर का, 3 2 जा 6, प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1, प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1, राइट, सो 6 -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, राइट, सो 6 - 2 विल बी 4. ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिला, तो क्या दिख रहा है, 0 है क्या, नहीं है, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू 4, मीन्स इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर यू कैन से ए इनवर्स एग्जिस्ट, मीन्स ए इनवर्स पॉसिबल है. नाउ यू सपोज टू फाइंड व्हाट, हियर वी सपोज टू फाइंड माइनर, क्या निकालना पड़ेगा, माइनस निकालना पड़ेगा. ओके, माइनर क्यों निकालेंगे, टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, बिकॉज मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट निकालना है, राइट, सो उसके लिए माइनस निकालना पड़ेगा हम लोग को. सो निकालते हैं, M11 निकालना पड़ेगा, 1 2 1 3, बिकॉज 3/3 का मैट्रिक्स है, M21 M22 M23 M31 M32 M33, राइट. इसमें 9 एलिमेंट्स आया, बिकॉज कितने कॉलम कितने रोज होते हैं टोटल हमारे पास, 3 रोज 3 कॉलम होते हैं, राइट. सो मैंने क्या किया, पहले 1 1 1 लिखा फर्स्ट रो, 1 2 3 दैट इज़ फर्स्ट कॉलम, देन 2 2 2 सेकेंड रो, 1 2 3 फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम, 3 3 3 मतलब थर्ड रो, 1 2 3 मतलब फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम लिखा मैंने, राइट. नाउ हियर क्या करना है हम लोग को, अभी यहाँ पे M11 निकालना है, क्या निकालना है, M11 निकालना है. हाउ विल यू फाइंड M11 ओवर हियर, ओके, 1 1 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, क्या बचा, 2 -1 -1 2. ओके, इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, सो राइट 4 minus -1 will be +1, right, so 4 - 1 is 3. 1 2 मतलब second column, right, and first row, so leave first row second column, क्या बचा, -1 -1 1 2, so cross multiply किसके साथ, -1 का 2 के साथ, so -1 into 2 -2 minus 1 into -1 -1, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सो दिस विल बी -1. ओके, नाउ 1 3 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, लीव, क्या बचा, -1 2 1 -1 क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 -1 +1 हो जाएगा, 1 2 जा 2, सो -1 -1 प्लस -1 2 जा 2, सो दिस विल बी -1. अब M21 निकालना है हम लोग को, राइट. M21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो लीव दैट, क्या बचा, -1 1 -1 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 का 2 के साथ, -1 का 1 के साथ, सो -1 into 2 -2 minus -1 into 1 -1, so minus plus, so -2 plus 1 will be how much, -1. now M22 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, लीव दैट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 का 2 के साथ, 1 का 1 के साथ, सो 2 2 जा 4 -1 1 जा 1, सो दिस विल बी 3. नाउ M23 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, लीव, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 का -1 के साथ, देन 1 का -1 के साथ, सो 2 -1 विल बी -2 माइनस 1 into -1 हो जाएगा, सो माइनस माइनस प्लस, सो -2 + 1 विल बी -1, राइट. ओके, नाउ अभी क्या निकालना है, M31 निकालना है, क्या निकालना है, M31. सो टू फाइंड M31 क्या करना पड़ेगा, थर्ड रो लेना पड़ेगा और फर्स्ट कॉलम लेना पड़ेगा,
leave. Third row, first column, cross multiply, -1 plus 1, 2 ones are 2. So this will be -1 -1 will be +1 minus 2 ones are 2. So this will be -1. अभी क्या करना है, M32 मतलब थर्ड रो सेकेंड कॉलम लीव. क्या बचा, 2 1 -1 क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू -1 -2 -1 इंटू 1 -1. So 2 into -1 will be -2 minus -1 into 1 plus 1, right? So this will be -1. M33 third row third column leave. 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, -1 का -1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 2 2 ज़ा 4 एंड -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा. सो हियर 2 2 ज़ा 4, -1 विल बी +1, 4 -1 विल बी 3, राइट. ये माइनस किसका आया, डिटरमिनेंट का आया, राइट. सो यहाँ पे क्या किया मैंने, माइनस निकाला. मैंने क्या बोला, माइनस के थ्रू को फैक्टर मिलेगा, राइट. जितने माइनर्स है उतने ही क्या रहने वाले हैं, को फैक्टर रहने वाले हैं. सो राइट को फैक्टर्स. हियर आई हैव रिटन ऑल द को फैक्टर्स. नाउ ये को फैक्टर भी क्या करेगा, मैंने लिख दिया. को फैक्टर का क्या आंसर आएगा, जो आंसर माइनस कराएगा, दैट इज 3 -1 -1 -1 3 -1 -1 3. बट एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि को फैक्टर में साइन चेंज होता है. सो किसका साइन चेंज होगा, जिसका पोजीशन ऑड रहेगा. 1 + 1 2 ऑड है कि इवन है, सो साइन विल नॉट चेंज. 1 + 2 3 हो जाता है, 1 + 2 3 हो जाता है. 3 क्या है, ऑड है, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा. 1 + 3 कितना होता है, 4 होता है, इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा. 2 + 1 3 होता है, 3 ऑड है तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. 2 + 2 इवन होता है, साइन विल रिमेन सेम. 2 + 3 विल बी 5, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. 3 + 1 4 होता है, साइन विल रिमेन सेम. 3 + 2 5 ऑड होता है, साइन विल चेंज. ओके. सो यहाँ पे को फैक्टर मिल गया. को फैक्टर के थ्रू क्या मिलेगा, को फैक्टर मैट्रिक्स मिलेगा. कैसे, जो भी को फैक्टर आया उसको मैट्रिक्स में अरेंज करो. क्या आया, 3 + 1 -1, देन क्या आया, +1 3 + 1, देन क्या आया, -1 + 1 3, राइट. ये को फैक्टर मिला. को फैक्टर के थ्रू क्या मिलेगा, एडजॉइंट मिलेगा, राइट. एडजॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं, जो को फैक्टर आया उसका ट्रांसपोज करते हैं. तो ट्रांसपोज करो, रो को चेंज कर दो कॉलम में, देन इसको चेंज करो, देन इसको चेंज करो. ये क्या मिला, एडजॉइंट मिला. यहाँ पे दोनों सेम दिख रहा है बिकॉज ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसके लिए. नाउ एडजॉइंट मिल गया. एडजॉइंट के थ्रू क्या निकाल लेंगे, ए इनवर्स निकालने के लिए हम लोग को फॉर्मूला पता है, दैट इज़ 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, राइट. डिटर्मिनेंट हमने स्टार्टिंग में निकाला, कितना निकाला, 4 निकाला. सो मैंने क्या किया, डिटर्मिनेंट के प्लेस पे 4 रिप्लेस कर दिया. एडजॉइंट ऑफ ए अभी कैलकुलेट किया, दैट इज़ 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3. ये क्या हम लोग का एडजॉइंट ऑफ ए है. सो मैंने क्या किया, एडजॉइंट ऑफ ए के प्लेस पे एडजॉइंट ऑफ ए रिप्लेस कर दिया. सो यहाँ से क्या मिल गया, ए इनवर्स का वैल्यू. तो क्या निकाला मैंने, माइनस निकाला, को फैक्टर निकाला, को फैक्टर मैट्रिक्स निकाला, उसका ट्रांसपोज कर दिया, तो वहाँ से एडजॉइंट मिल गया. डिटर्मिनेंट के प्लेस पे डिटर्मिनेंट रिप्लेस कर दिया, एडजॉइंट के प्लेस पे एडजॉइंट रिप्लेस कर दिया. सो वहाँ से क्या मिल गया, ए इनवर्स का वैल्यू. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो. अगर आपको कुछ भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ कमिंग वीडियो.